हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज के वर्चुअल क्लास में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर एट साइंस, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड टू वर्चुअल क्लासेस ऑन दिस चैप्टर. हमने इसी चैप्टर पे दो वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट किए हैं. इन दिस लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज मीन बाय फोर्स. फोर्स क्या होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स क्रिएटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स. फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पे कौन से इफेक्ट क्रिएट होते हैं. Also in the first video we have discussed about the two types of forces, that is contact force and non-contact force. Contact force और non-contact force के भी बारे में हमने फर्स्ट वर्चुअल क्लास और फर्स्ट लेक्चर में जानकारी ली है. In the second virtual class we have again seen the next type of force, that is balanced force and imbalanced force. Also very important topic we have studied in the second lecture, that is inertia. Inertia, the inherent property of the body की जो inherent property होती है, that remains in its rest motion or in its uniform motion until we apply an external balance force on that object. किसी भी ऑब्जेक्ट हो, जब तक हम उसी ऑब्जेक्ट पे कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तो दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट. जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसी स्टेट में क्या होता है, कंटिन्यू होता है. दैट इज इनर्शिया. उसी को हम इनर्शिया कहते हैं. There are three types of inertia we have seen in the second lecture. Inertia की जो दो थ्री टाइप्स हैं उसके बारे में भी हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कशन किया है. टुडे वी आर गोइंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आज हम इसी चैप्टर का सेकेंड जो पार्ट है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड दैट सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू प्रेशर. वो सेकेंड पार्ट किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड. ओके, तो चलो लेट्स सी our chapter. And what is the name of our chapter? Force and pressure. Force and pressure. देखो, force and pressure we have discussed about the force. Now today we are going to learn or we are going to discuss about pressure. आज हम pressure एक कंसेप्ट है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. देखो, what is mean by pressure? Pressure, important pressure is related to the force. Pressure a force से related. Therefore, when we apply the force on that object, किसी भी object पे जब हम force apply करते हैं, that force applied on the unit surface area on that object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइड फोर्स दोनों का जो सरफेस है, दैट मींस प्रेशर जो अप्लाई होता है, दैट प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. वो प्रेशर किस पे डिपेंड होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है. देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट सरफेस एरिया is called pressure. What is the definition of the force? The force exerted perpendicular of a unit surface area. The force applied perpendicular on the unit surface area is called pressure. देखो, what is the definition? The force applied or exerted. The force applied on the force applied perpendicularly. Very important word यहाँ पे perpendicular the force applied on the object perpendicularly Ly on unit surface area is called pressure. देखो,
The force exerted perpendicular on the unit surface area of an object is called pressure. The SI unit of pressure, देखो what is the formula? सबसे पहले हम formula के बारे में स्टडी करेंगे. The force applied on object perpendicular to unit surface area means pressure is equal to force upon area. Force upon area. Pressure is equal to force upon area. Now force, what is the force? Force for F and area for A. Okay, we know what is the SI unit of force. We have discussed in the first virtual class. इसी चैप्टर के फर्स्ट वर्चुअल क्लास में हमने फोर्स का SI एंड CGS यूनिट्स के बारे में जानकारी ली है. we have written the नोट्स भी जो हमने लिखा है उसी में फोर्स का SI यूनिट हमने मेंशन किया है. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? टेल मी, कौन सा है फोर्स का SI यूनिट? दैट इज न्यूटन. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन फॉर N. And area meter into meter. Therefore, what is the SI unit of area? Meter square. Okay. Tell me the SI unit of pressure. अभी देखो, pressure force and area से रिलेटेड. फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली प्रेशर का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Therefore, SI unit of pressure is equal to Newton per meter square. Or it is also called as Pascal, and Pascal in short, Pa. Blaise Pascal was the name of the scientist. देखो, Blaise Pascal नाम का एक साइंटिस्ट था. That scientist studied very detail about pressure. इसी साइंटिस्ट ने प्रेशर के बारे में बहुत डीपली स्टडी किया, and therefore because of his honor, because of his devotion, उसकी devotion के कारण the unit of pressure is also called as Pascal. Therefore प्रेशर का जो यूनिट है उसी को पास्कल भी कहा जाता है, एंड इन शॉर्ट इट इज पा. उसके बाद देखो, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोस्टली इंडिकेटेड बाय बार. देखो, अब जब आप लोग न्यूज देखते हैं तो न्यूज में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बताया जाता है किसी भी एरिया का, वो प्रेशर बार यूनिट में डिटेल, और बार जो यूनिट है उसी यूनिट में क्या किया जाता है, बताया जाता है. Therefore, pressure SI unit of atmospheric pressure is bar. Atmospheric pressure का जो यूनिट है वो क्या है, बार. And what is the relationship between Pascal and bar? Pascal and bar का क्या रिलेशन है? तो ध्यान में रखो, वन एटमॉस्फेरिक जो 1 bar is equal to 10⁵ पास्कल. देखो, 1 bar is equal to 10⁵ पास्कल. What is the relationship? बार और पास्कल में क्या रिलेशनशिप है? 1 bar is equal to 10⁵ पास्कल. पास्कल, ब्लेस पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is the SI unit. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर is the CGS unit. देखो, न्यूटन SI यूनिट है फोर्स का, तो डाइन क्या है? CGS यूनिट है. मीटर स्क्वायर SI यूनिट है एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? एरिया का CGS यूनिट है. तो डाइन मीटर स्क्वायर SI यूनिट आएगा प्रेशर का, और सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट आएगा प्रेशर का, एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर का CGS यूनिट आएगा. एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल. And what is the relationship between Pascal and bar? 1 bar is equal to 10⁵ Pascal. आपको ये MCQ और fill in the blank जो टॉपिक है उसी टॉपिक में आ सकता है. देखो, ध्यान में रखो, 1 bar is equal to dash Pascal.
तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, बार। ध्यान में। तो चलो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसी कंटेंट जो है प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड एंड प्रेशर आल्सो एक्सर्टेड ऑन गैसियस ऑब्जेक्ट्स। तो देखो कौन से ऑब्जेक्ट्स पे और कौन से मीडियम में प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। तो प्रेशर का डेफिनेशन हमने देखा है, उसके बाद प्रेशर का यूनिट देखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हमने इसी डिस्कस किया है। अभी ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर कैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट पे कैसे एग्जर्ट होता है, लिक्विड ऑब्जेक्ट पे कैसे एग्जर्ट होता है और गैसियस ऑब्जेक्ट पे कैसे एग्जर्ट होता है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो, प्रेशर एक्सर्टेड, पहला प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन गैसियस। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉलिड्स, प्रेशर एक्सर्टेड और प्रेशर ऑफ सॉलिड्स, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स और प्रेशर ऑफ गैसेस। अभी देखो किसी भी ऑब्जेक्ट जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है। अभी देखो वेरी सिंपल, ये डस्टर मेरे हाथ में डस्टर है, इफ यू सॉ द बेस ऑफ द डस्टर, ये डस्टर का जो बेस आपने देखा, सपोज this length of the duster is this length, suppose it is 4 centimeter, okay, and this breadth is 2 centimeter। देखो खाली बेस में का मैं कंसीडर करता हूं, ये तो ये बेस का लेंथ आएगा और ये बेस का विड्थ आएगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस, लेंथ इनटू विड्थ और ब्रेथ। तो लेंथ 4 है, ये कितना है, विड्थ कितना है 2 सेमी, 4 into 2 कितना आएगा 8। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सॉलिड के लिए। देखो सपोज ये ब्रिक है, ब्रिक में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। When I release this brick, सपोज यहाँ पे सैंड है, ओके, यहाँ पे सैंड मैंने रखा है, and when I release this brick horizontally, ये ब्रिक मैंने हॉरिजॉन्टली अभी रिलीज किया, ड्रॉप किया, तो ये जो बेस है ये ब्रिक का, ये जो बेस है, ये बेस अभी क्या हो जाएगा, इट रेस्ट ऑन द सैंड, वो सैंड पे जाएगा। ओके, तो कितना नीचे जाएगा सैंड में, कितना तो डीपली जाएगा, काउंट करो। देखो ये जो ब्रिक है इसका सपोज ये 10 सेमी उसका विड्थ है, ये 10 सेमी है, सॉरी लेंथ है, और ये 4 सेमी का है विड्थ। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस विड्थ, अभी ये विड्थ का सरफेस एरिया कितना आएगा, 10 into 4 means that is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी सेम ब्रिक व्हेन आई रिलीज वर्टिकली, जब अब ये ब्रिक अभी मैं क्या करता हूं, वर्टिकली रिलीज करता हूं, तो वर्टिकली रिलीज किया तो ये ब्रिक ऐसा आएगा। सेम ब्रिक देखो वर्टिकली रिलीज किया ये ब्रिक, तो अभी ये ब्रिक का सरफेस एरिया जो है, बेस का सरफेस एरिया ये आएगा। ओके, अभी आपको मालूम है दिस इज द 4, ये 4 सेमी है एंड इसका विड्थ जो है वो 2 सेमी। अभी ऐसा मैंने ड्रॉप किया तो ये 4 सेमी क्या आएगा, उसका लेंथ आएगा, और ये विड्थ क्या आएगा 2 सेमी। तो 4 into 2, ये 2 सेमी विड्थ आएगा, तो 4 into 2 means that is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट द सेम फोर्स, दोनों के लिए, दोनों एट बोथ केसेस आई हैव अप्लाई द सेम फोर्स, दोनों केसेस में मैंने सेम फोर्स अप्लाई किया है, बट
चेंजेस द सरफेस एरिया, बट सरफेस एरिया क्या हुआ, चेंज हुआ। फोर्स में दोनों केसेस में दोनों टाइम्स में मैंने फोर्स सेम अप्लाई किया, सम फोर्स आई हैव एक्सर्टेड ऑन द ब्रेक बट सरफेस एरिया चेंजेस। इनिशियली दिस वाज द सरफेस एरिया, इनिशियली ये सरफेस एरिया था एंड देन सेकंड टाइम इट वाज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया था। तो कौन सा सरफेस एरिया ग्रेटर है और कौन सा सरफेस एरिया स्मॉलर है? When I drop the brake vertically, sorry, when I drop the brake horizontally, जब मैंने ब्रेक हॉरिजॉन्टली ड्रॉप किया तो सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। When I drop the brake vertically, तो सरफेस एरिया कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा सरफेस एरिया ग्रेटर है और कौन सा सरफेस एरिया स्मॉलर है? ये सरफेस एरिया क्या है, ग्रेटर है, और ये सरफेस एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर है। Therefore, for pressure depends upon the surface area. जब surface same, when you apply the same force, जब आप same force apply करते हैं तो pressure depends on the surface area. जब आप same force apply करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसी टाइम प्रेशर किस पे डिपेंड होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है। If the surface area is greater, exerting pressure is smaller, and when the surface area is smaller, the exerting pressure or applying pressure is greater. In this way we have इसी way और in this way the pressure exerted on solid, in this way solid पे pressure क्या होता है, exert होता है। You have given the activity on your textbook at the page number that is 17. आपके टेक्स्ट बुक में 17 पेज पे एक एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी देख के आपके 100% समझ में आएगा कि सॉलिड पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कैसे एक्सर्ट होता है। देखो कौन सा है वो एक्टिविटी, यू हैव 2 वुडन ब्लॉक्स, वहां पे 2 वुडन ब्लॉक्स दिए हैं एंड ऑन दैट 2 वुडन ब्लॉक्स प्लेस अ वुडन प्लैंक। देखो ये वुडन ब्लॉक है, दिस इज द वुडन ब्लॉक, यहां पे सेकेंड वुडन ब्लॉक है, ओके, these 2 wooden blocks and there is a wooden plank placed on this, ये दोनों ब्लॉक पे क्या प्लेस किया है, प्लैंक प्लेस किया है। दिस इज द वुडन प्लैंक, ये वुडन प्लैंक है, ओके। नाउ दिस वुडन प्लैंक एक्सर्ट द फोर्स, अभी ये वुडन प्लैंक जो है वो ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नाउ एट द सेकेंड टाइम आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास अभी 4 बुक्स है। आई प्लेस दैट बुक्स ऑन द, ये जो बुक्स है ये बुक्स मेरे पास है, मैं ये बुक्स 4 बुक्स है इक्वल साइज के 4 बुक्स है और आई प्लेस दैट 4 बुक्स ऑन दिस वुडन प्लैंक। ये 4 बुक्स में भी वुडन प्लैंक के क्या करता हूं, प्लेस करता हूं। देखो दिस बुक्स आर स्प्रेड, अभी ये बुक्स जो है मैंने स्प्रेड करके रखा है। यहाँ पे फर्स्ट बुक प्लेस किया है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। दे इफ यू ऑब्जर्व एट द पोजीशन ऑफ द वुडन प्लैंक, अभी ये 4 बुक्स प्लेस कर स्प्रेड करके जब आप लोग ये वुडन प्लैंक का पोजीशन देखोगे यू विल नोटिस इट इज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो ये वुडन प्लैंक जो है वो ओरिजिनल स्टेट में ही आपको मिलेगा। मींस व्हाटएवर द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस बुक्स, ये जो बुक्स ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो फोर्स स्प्रेड है, वो फोर्स स्प्रेड हो गया, सरफेस एरिया बड़ा हो गया, देयरफॉर एक्सर्टिंग प्रेशर क्या है, स्मॉलर है। अभी एट द सेकंड स्टेज में क्या है, देखो अभी नेक्स्ट में क्या करता हूं, दिस वुडन प्लैंक्स, ये वुडन प्लैंक है, ओके, एंड ऑन दिस वुडन प्लैंक आई हैव प्लेस्ड द सेम, सॉरी दीज आर द वुडन ब्लॉक्स, ये वुडन ब्लॉक्स है एंड ऑन दिस वुडन ब्लॉक्स आई हैव प्लेस्ड द सेम वुडन प्लैंक। उसी वुडन ब्लॉक पे मैंने क्या किया, एक वुडन प्लैंक रखा, सेम वुडन प्लैंक है, ओनली व्हाट इज द कंडीशन आई हैव चेंज इन द सेकंड टाइम। अभी सेकंड टाइम मैं क्या कौन सा कंडीशन चेंज कर रहा हूं,
whatever the books I have spread horizontally, जो books मैंने horizontally spread किया है wooden plank पे, at the second time I have placed at the center of the wooden plank, ये 4 books मैं अभी क्या करता हूँ, ये wooden plank के सेंटर पे रखता हूँ। देखो ये वुडन प्लैंक का सेंटर पोजीशन है, ये पहला बुक मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद ये सेकंड बुक रखता हूँ, प्लेस करता हूँ, ओके, दिस इज द फर्स्ट बुक, सेकंड, उसके बाद एक थर्ड बुक में प्लेस करता हूँ, एंड नाउ दिस इज द फोर्थ बुक। अभी देखो व्हेन यू प्लेस द 4 बुक्स वर्टिकली, जब आप लोग ये 4 बुक्स वर्टिकली प्लेस करते हैं तो then you will notice that at the central position of the plank, ये plank का जो सेंट्रल पोजीशन है it will get bent, तो ये थोड़ा क्या आपको मिल रहा है, थोड़ा बेंड हो रहा है, मींस ये जो यहाँ पे वुडन प्लैंक स्ट्रेट था, यहाँ पे वुडन प्लैंक पूरा क्या हो गया, बेंड हो गया। तो कैसे बेंड हो गया और व्हाई दिस वुडन प्लैंक बेंड एट द सेंट्रल पोजीशन, ये वुडन प्लैंक सेंट्रल पोजीशन में क्यों बेंड हुआ, हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कौन सा रीजन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है प्रेशर, क्योंकि अभी यह सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, फोर्स तो सेम है, 4 बुक्स है, यहाँ पे भी मैंने 4 बुक्स रखे, बट एट द सेकंड टाइम द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सेकंड टाइम सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ और एक्सर्टिंग प्रेशर बढ़ गया, एंड ड्यू टू प्रेशर दिस वुडन प्लैंक गेट बेंड, उसी प्रेशर की वजह से ये वुडन प्लैंक क्या हो गया, बेंड हो गया। वेरी सिंपल, देखो मेरे पास कुछ, मैं अभी ऐसा प्रेस करूंगा तो मुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा, बट व्हेन आई प्रेस बाय आयरन नेल ऑन द स्किन, जब मैं इसी थंब से जब मैं इसी स्किन पे प्रेस करता हूं तो मुझे ज्यादा पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, बट इंस्टेड ऑफ दिस थंब इफ आई प्रेस विथ आयरन नेल, जब मैं आयरन नेल से यहाँ पे प्रेस करूंगा इट विल गेट जब और इट विल गेट पेन्स, तो मुझे दर्द होगा, व्हाई, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द नेल इज स्मॉलर देन द सरफेस एरिया ऑफ द थंब, नेल का जो सरफेस एरिया था उसके कंपैरिजन में थंब का सरफेस एरिया ग्रेटर है, तो सरफेस एरिया ग्रेटर है तो एक्सर्टिंग प्रेशर स्मॉलर है, नेल का सरफेस एरिया स्मॉलर है तो एक्सर्टिंग प्रेशर क्या है, ग्रेटर है, सॉरी सरफेस एरिया स्मॉलर है तो एक्सर्टिंग प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो एक्सर्टिंग प्रेशर क्या है, कम है, ओके। सेम कंडीशन देयरफॉर व्हेन वी हैमर द नेल ऑन द, जब हम नेल जो होता है वो नेल ऐसा रहता है, देखो, और दिस इज द शार्प एंड ऑफ दिस नेल एंड इट इज द फ्लैटेड एंड, ये फ्लैटेड एंड होता है, तो जब हम किसी वॉल पे जो नेल हम क्या करते हैं, हैमर करते हैं, तो कौन सा एंड हम मोस्टली वॉल पे रखते हैं, ये, व्हाई, बिकॉज इसका सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा एक्सर्ट होता है, एंड देयरफॉर इट गोस डीपली इनटू द वॉल, देयरफॉर ये एंड हमने वॉल पे रखा तो जाएगा ज्यादा अपने वॉल में, वो ड्रेन डीपली जाएगा, नो, बिकॉज यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर विद दिस एंडिंग पोर्शन। आया समझ में, तो सॉलिड पे कैसा प्रेशर एक्सर्ट होता है। अभी सेकंड, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, लिक्विड इज अ फ्लोइंग सब्सटेंस, लिक्विड एक फ्लोइंग सब्सटेंस है, तो प्रेशर लिक्विड पे कैसे एक्सर्ट होता है प्रेशर, देखो यहाँ पे बॉटल है, एक बॉटल, सपोज यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल मैंने टिप किया, दिस इज अ प्लास्टिक बॉटल एंड now this plastic bottle has 3 holes, ये प्लास्टिक बॉटल पे ये 3 holes है, I have stick these holes by paper, स्टिकिंग जो पेपर है उसी पेपर से स्टिकिंग पेपर से मैंने स्टिक किया है। now fill the water in this bottle, अभी इस बॉटल में मैंने क्या वाटर फिल किया
water H2O. Okay. Now when जब अभी मैंने स्ट्रिप में मैंने यहाँ पे रखा था वो अभी मैं खींच लेता हूं तो क्या हो जाएगा? The water will release from these 3 holes. ये 3 holes से क्या होगा? वाटर क्या हो जाएगा? ड्रॉप होगा, वाटर बाहर आएगा. तो टेल मी ऑन विच, अभी वाटर जो ड्रॉप आएगा बाहर तो कौन से होल्स में से आने वाला वाटर ज्यादा प्रेशराइज रहेगा? कौन से होल में से वाटर ज्यादा प्रेशराइज रहेगा? देखो, द प्रेशर ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द कंटेनर. प्रेशर ऑफ लिक्विड का प्रेशर उसी कंटेनर के हाइट पे डिपेंड नहीं होता. द प्रेशर ऑफ लिक्विड और प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ वाटर इन दैट कंटेनर. उसी कंटेनर में वाटर का हाइट कितना है उसी हाइट पे क्या होता है वो प्रेशर डिपेंड होता है. और लास्ट का जो होता है गैसियस आर द फ्लूइड सब्सटेंस. फ्लूइड व्हाट इज बाय फ्लूइड? Those substance can flow. जो सब्सटेंस फ्लो होते हैं उसी को फ्लूइड सब्सटेंस कहते हैं. लिक्विड एंड गैसेस आर द फ्लूइड सब्सटेंसेस. लिक्विड एंड गैसेस से कौन से सब्सटेंस है? वो फ्लूइड सब्सटेंसेस है. एंड दिस फ्लूइड सब्सटेंसेस, ये जो फ्लूइड सब्सटेंस है ये फ्लूइड सब्सटेंसेस आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर. ये फ्लूइड सब्सटेंस भी क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो प्रेशर ऑन द लिक्विड जो प्रेशर exerted by gaseous और pressure on the gaseous. तो gaseous substance जो pressure exert करते हैं तो वो pressure it exert the pressure on the walls of the container, bottom of the container and so surface of the container. देखो अभी अपना जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो टैंक होता है अपना, उसी वो टैंक जो है वॉल्स बहुत हार्ड होता है. देखो अपना हम जो डोमेस्टिक जो सिलेंडर हम यूज करते हैं अपने घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं तो वो सिलेंडर का जो टैंक होता है आप प्रेस करके देखो उसको, बहुत हार्ड है, उसका वॉल्स बहुत हार्ड होता है. व्हाई? वो किसी थिन शीट में क्यों नहीं प्लेस करते? उस क्यों हम फिल नहीं करते वो गैसेस सब्सटेंसेस? बिकॉज गैसेस सब्सटेंसेस exerted the pressure on its wall. देखो अपना कुछ परफ्यूम भी रहेगा, दैट परफ्यूम आल्सो कंटेन द गैसेस सब्सटेंसेस. परफ्यूम का बॉटल है, उसी बॉटल में भी क्या होता है? गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं. तो परफ्यूम का बॉटल का भी वॉल्स देखो वो भी क्या होता है? हार्ड होता है, क्योंकि उसी में जो गैसेस सब्सटेंस होते हैं वो गैसेस सब्सटेंस क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. एंड दैट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम, ऑन द वॉल्स एंड द सरफेस एरिया. एंड सेकेंड, सपोज अपने साइकिल की जो ये साइकिल का इनर ट्यूब है और बलून है, सपोज ये बलून है. हम बलून क्या करते हैं? बलून में एयर फिल करते हैं. जब हम बलून में एयर फिल करते हैं तो टेल मी ऑन विच साइड इनिशियली एयर गोस? कौन से साइड में सबसे पहले एयर हम जब फिल करेंगे तो जाएगा? साइड वाले, फ्रंट, बैक? नो. When we exert the pressure, when we exert the air, when we fill the air in the balloon, that time that air exert the pressure, equal pressure in all direction. वो equal pressure all direction पे equal pressure क्या करता है? exert करता है. जब हमारा 2 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर का जो व्हील होता है, व्हील में जब हम एयर फिल करते हैं तो वो भी एयर जो है वो एयर ऑल डायरेक्शन में जाता है, इक्वली जाता है. ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे हम देखो ये व्हील है, दिस इज द व्हील, इट इज द इनर, एंड यहाँ पे एयर फिल करने का जो नोजल होता है, यहाँ से मैं एयर फिल करूंगा तो टेल मी एयर गोज इन दी डायरेक्शन और इन दी डायरेक्शन? कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा? पहले इसी डायरेक्शन में जाएगा? नो. देन इसकी तरफ जाएगा? नो. whatever the air fill, जब हम एयर फिल करेंगे that air passes equally in all direction. क्योंकि ये जो एयर है, इसी व्हील में जो एयर है
ट्यूब में जो एयर होता है वो एयर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में। ओके, इन दिस वे योर प्रेशर exerted on solid, pressure exerted on liquid and pressure exerted on gases। आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी चैप्टर पे हम कम से कम 4 to 5 वर्चुअल क्लास कंडक्ट करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। इसके लेंथी चैप्टर होने की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स व्हाई यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।